अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। अभी तक का ताज़ा उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान ज़ुहूर लोलाई भी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू जम्मू कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे पर। श्रीनगर हवाई अड्डे पर LG मनोज सिन्हा ने सदर का किया वालहाना इस्तकबाल। कश्मीर यूनिवर्सिटी के 20वें कन्वोकेशन में करेंगी शिरकत। बनहाल मंशियात जब्ती मामले का अहम सरगना पंजाब से गिरफ्तार। 4.94 करोड़ रुपए नकदी जब्त। 38 गाड़ियों के नंबर प्लेट भी जब्त। पुलिस ने की तहकीकात शुरू। फलस्तीन और इसराइल के बीच जारी कशीदगी 5वें रोज भी जारी। 2000 के करीब लोग हलाक, 5000 के करीब जख्मी। कई बच्चों को बनाया गया यरगमार। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू आज से जम्मू कश्मीर के 2 रोजा दौरे पर है। श्रीनगर हवाई अड्डे पर पहुंचने पर आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरविंद कुमार मेहता और इंतजामिया के दूसरे अफसरान ने द्रौपदी मुर्मू का वालहाना इस्तकबाल किया। श्रीनगर एयरपोर्ट से द्रौपदी मुर्मू बजरी हेलीकॉप्टर बीबी कैंट श्रीनगर पहुंची, जहां पर फौज की जानिब से मुनक्कदा तकरीब में द्रौपदी मुर्मू ने शिरकत की। इस मौके पर जहां शहीद फौजी जवानों को खराज पेश किया गया, वहीं पर LG अफसरान ने द्रौपदी मुर्मू को सिक्योरिटी सूरत हाल से भी रोशनाश कराया। चलिए सीधा आपको कश्मीर यूनिवर्सिटी लिए चलेंगे, जहां इस वक्त सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू 20वें कन्वोकेशन से खिताब कर रही है। क्या कुछ कह रही है, बराह रास्त आपको सुनवाते हैं। Holding the highest constitutional office embodies leadership, integrity and dedication to underprivileged communities. Her personal journey, marked by courage and commitment, saw her become the first woman from her village to complete college education. As an educator and 2-term Minister of State, she earned the Pandit Neelkant Das Best Legislature Award for innovative reforms and educational outreach in tribal societies. Serving as Jharkhand's first female and longest serving governor from 2015 to 2021, she upholds the constitutional values, advocated for tribal rights and drove administrative reforms. Honorable President, your life's work sets an exemplary path for future generations, especially our aspiring students. We eagerly await your insights on education, leadership and our nation's future. We are honored to have you here and eagerly anticipate the possibilities your visit may bring. We are delighted to welcome the Honorable Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir and Chancellor of the University of Kashmir, Shri Manoj Sinha, to this convocation. Your presence, sir, adds grace to this occasion, and we hold your august stature in high regard. Shri Sinha, as the Lieutenant Governor, has ensured effective governance, administrative reform, and people-centric policies, fostering growth and prosperity in the region. His focus on the education sector has led to key initiatives and reforms, enhancing higher education in Jammu and Kashmir. Your dedication to higher education and the intellectual growth of our youth is evident, and we look forward to further advancements in your leadership. This 20th convocation is a proud moment for the university. Now in its 76th year, it signifies a significant milestone in our students' academic journey, marked by hard work and dedication. Congratulations to all the students receiving awards, and we wish you the best in your future endeavors. A total of 262 gold medals, 46,812 undergraduate degrees,
5,509 postgraduate degrees, 620 MD, MS, and 582 PhD and MPhil degrees will be conferred today. Notably, this achievement reflects our commitment to advancing women's education. With 169 female students receiving gold medals and 31,577 girls among the degree recipients. This aligns with Prime Minister Shri Narendra Modi ji's Beti Bachao Beti Padhao mission. From its inception as the University of Jammu and Kashmir in 1948 to becoming a leading academic institution, our journey has been marked by commitment and the pursuit of excellence. With 5 campuses across the Union Territory and 202 affiliated colleges, which comprise तकरीब चल रही है जिसमें सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू मेहमान खुसूसी के तौर पर वहाँ शरीक है। LG मनोज सिन्हा भी वहाँ पे मौजूद है और भी इंतज़ाम के बाकी अफसरान के अलावा तलबा और कश्मीर यूनिवर्सिटी के अफसरान भी वहाँ पे मौजूद है। आपको बता दें कि आज 20वें कन्वोकेशन से द्रौपदी मुर्मू भी खिताब करेंगे और वहाँ पे मेडल्स भी तकसीम करेंगे। इतलात के मुताबिक आज ही द्रौपदी मुर्मू फिर राजभवन में मकामी कबाइल ग्रुपों के अरकान और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की खवातीन से बातचीत करने के अलावा एक एजाजिया शहरी इस्तकबालिया में भी वो शिरकत करेंगे। और ज़राए के मुताबिक कल सदर मुमलिकत माता विष्णु देवी श्राइन का दौरा करेंगे, जहां वो दोबारा से बनाए गए पार्वती भवन और स्काई वॉक का इफ्तिताह करेंगे। दौरे के पेश नज़र हुकाम ने वादी बिलखुसूस शहर श्रीनगर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए हैं और किसी भी मुमकिन नाखुशगवार वाक़े को नाकाम बनाने के लिए बाहरी तादाद में सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया है। इधर कश्मीर यूनिवर्सिटी में कन्वोकेशन शुरू होने से पहले तलबा ने हमारे नुमाइंदों से बात की है और उन्होंने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क के सदर द्रौपदी मुर्मू से अवार्ड हासिल करना उनके लिए फख्र की बात है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। मैं डॉक्टर तारिक अब्दुल्ला यहाँ कश्मीर यूनिवर्सिटी के MRC में काम कर रहा हूँ एज प्रोड्यूसर एंड टुडे आई एम बीइंग अवॉर्डेड PhD certificate. It's a great honor that the head of the state, Honorable President of India, is coming to Kashmir, and in 20th convocation the students are receiving the awards, and it's always a great moment for any student to receive award at convocation, and this will boost and motivate the other students also to achieve excellence in their academics. जी आज टुडे जो हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो हम सबको गोल्डन मेडल से ये नवाजेंगी। सो ये हम सब के लिए एक बहुत ग्रेट मोमेंट है और बहुत मतलब खुशी का मोमेंट है, मुकाम है। जी जी। तो किसमें आपने डिग्री हासिल की है? जी हमने एजुकेशन में डिग्री हासिल की है, तो हमने उसमें फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, प्लस हमने अपने स्कूल ऑफ थॉट स्कूल जो है उनमें भी टॉप किया हुआ है। सो आई विल गेट 2 गोल्डन मेडल्स टुडे फ्रॉम कश्मीर। जी बिल्कुल, जो मतलब हमने अपने टाइम पे जो मेहनत की है और उसका फल जो हमें आज मिलने वाला है, ये एक बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है एक स्टूडेंट की लाइफ में कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खुद आ रहे हैं यहाँ पर, और जो मेडल्स है या जो सर्टिफिकेट्स वगैरह उनको इशू करनी है वो आज मतलब इशू करेंगे वो, और इसकी वजह से जो स्टूडेंट्स का हौसला जो है वो बुलंद रहता है और उनको आगे जाने का एक मतलब मन बन जाता है कि हम आगे एक्सेल करें। जी एक हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से हमें गोल्ड मेडल मिल रहा है। सो हमारे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि हम एक फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया से मिल रहे हैं, दैट टू फीमेल स्टूडेंट्स, और एक फीमेल प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं। सो फीमेल स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि इससे उनकी एनकरेजमेंट दुगना हो जाती है। तो क्या जैसे कि हमें सबको पता है कि प्रेसिडेंट खुद यहाँ आ रही है हम सबको अवार्ड देने के लिए, और मुझे लगता है ये बहुत इंस्पायरिंग है स्टूडेंट्स के लिए। जैसे मैं एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट से हूँ, अभी एंथ्रोपोलॉजी हमारे कॉलेजेस हायर सेकेंडरीज में उतना
इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, तो उम्मीद यही है कि ये वाला सब्जेक्ट भी बहुत इंट्रोड्यूस किया जाएगा और हमें आगे चलने की भी बहुत सारे मौके मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर की बात करते हैं और आपको बता दें गैर रियासती मंशियात फरोश का नेटवर्क फाश करते हुए पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस और पंजाब पुलिस ने मिलनपुर डक्का से एक मंशियात स्मगलर को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीमों ने इस दौरान मंशियात स्मगलर के कब्जे से 38 जाली गाड़ियों की नंबर प्लेट है और करीबन 5 करोड़ रुपए नकदी भी जब्त किए हैं। डीजीपी पंजाब पुलिस ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि गिरफ्तार शख्स हाल ही में जम्मू में जब्त की गई 30 किलो हेरोइन की बरामदगी के अहम मुलजिमों में से एक है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार शख्स के रवाबित का पता लगाने के लिए तहकीकात बड़े पैमाने पर शुरू कर दी गई है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार शख्स के कब्जे से एक रिवॉल्वर भी बरामद किया गया है। वो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि नकदी कैश जब्त हुआ है और साथ ही साथ एक रिवॉल्वर भी जब्त हुआ है। और गिरफ्तार स्मगलर की शिनाख्त सुरजीत उर्फ मान के तौर पर हुई है। आपको याद होगा कि 1 अक्टूबर को रामबन जिला में एक गाड़ी से करोड़ रुपए मालियत की 30 किलो ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी, जिस दौरान पुलिस ने 2 मंशियात स्मगलर को गिरफ्तार किया था। और ये बाजाबी श्रीनगर जम्मू को इशारा पर पंजाब जाने वाले एक निजी कार से की गई थी। ताहम आज जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली और जम्मू कश्मीर और पंजाब पुलिस ने मंशियात स्मगलर को गिरफ्तार किया है। आगे बढ़ते हैं। सरहदी जिला पुंछ के मनकूट में एलओसी के करीब एक फौजी एहलकार को पुरअसरार हालत में उसकी मौत हुई है और कहा जा रहा है कि गोली लगने से एक अग्निवीर फौजी एहलकार हलाक हुआ है। पुलिस राय के मुताबिक अमृतपाल सिंह जो कि पुंछ जिला के मेंढर सब डिवीजन मनकूट इलाके में एलओसी के करीब तैनात था और सेंट्री ड्यूटी अंजाम दे रहा था और बताया गया कि गोली लगने से इसकी मौका पर ही मौत हो गई है। और पुलिस ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि क्या ये वाक़ा हादसाती तौर पर गोली चलने या खुदकुशी है, इस हवाले से तहकीकात शुरू कर दी गई है। और पुलिस पार्टी ने जाए वक़्फ़ का दौरा किया और तमाम कानूनी कार्रवाइयाँ मुकम्मल करने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए सब जिला अस्पताल मेंढर मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ पोस्टमार्टम के बाद ये लाश एहलखाना को हवाले कर दी जाएगी। CHC मेंढर में पोस्टेड हूँ। आज हमारे पास अमृतपाल सिंह उम्र 20 साल पंजाब का रहने वाला है। ये अग्निवीर था और ये बुलेट इंजरी से इसका मौके पे वहाँ डेथ हुई। इन्होंने हमारे पास कोई 10 बजे के करीब, 10:15 बजे के करीब यहाँ पे मेंढर में लाया पोस्टमार्टम करने के लिए। हमने इनका पोस्टमार्टम करके पुलिस को बॉडी हैंड ओवर कर दिया फर्स्ट लास्ट में। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पीडीडी के हवाले से एक मीटिंग का जायजा लिया, जिसमें उन्होंने बिजली के हवाले से सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने बिजली की मांग को पूरा करने के लिए पीडीडी डिपार्टमेंट की जामिया हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया और सरमाई मौसम में बिजली की मुनासिब और काबिल एतमाद फराहमी को यकीनी बनाने के लिए देरपा और कारकर्दगी में इजाफा करने की हिदायत दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अफसरों को हिदायत दी कि जम्मू, श्रीनगर और बाकी हेडक्वार्टरों के स्मार्ट मीटर सैचुरेशन को तरजीही बुनियादों पर किया जाना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि पीडीडी को मीटर वाले इलाकों को काबिल एतमाद खिदमात और मयारी बिजली की फराहमी को यकीनी बनाना चाहिए। इस मौके पर जानकारी दी गई कि पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में तकरीबन 4 लाख स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सार्फिन को परेशानी से बचने के लिए कटौती मंसूबों की तामील और खराब ट्रांसफार्मर को बरवक्त तब्दील करने की हिदायत दी। उन्होंने मजीद कहा कि आने वाले सरमाई मौसम के पेश नज़र सरहदी और दूर दराज इलाकों के लिए ट्रांसफार्मर का एडवांस बफर स्टॉक रखा जाए ताकि कोई सरमा में कोई मुश्किलात ना हो। उन्होंने कहा कि जमीन पर मौसर निफाज से बिजली की चोरी से भी निपटा जाना चाहिए। मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, चेयरमैन JKPCL डॉक्टर RP सिंह, लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर मनदीप कुमार भंडारी, सूबाई कमिश्नरों, जिलदरगेद कमिश्नरों और मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने वर्चुअली इस मीटिंग में शिरकत की।
شمالی کشمیر بارامولہ میں حضرت سید جانباز ولی رحمۃ اللہ علیہ کا 605واں عرس عقیدت و احترام سے منایا گیا، جس میں عقیدت مندوں کی خاص تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر درود و اذکار اور ختمات المعظمات کے حوالے سے تقاریب کا اہتمام کیا گیا اور اس کے حوالے سے کیے گئے انتظامات پر لوگوں نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح کی سہولت عقیدت مندوں کے لیے ہونی چاہیے تھی اس طرح کے انتظامات نہیں تھے۔ سید محمد جانباز ولی رحمۃ اللہ علیہ زیارت کے حوالے سے بات کریں، جہاں پہ آج رات کو باضابطہ طور پر شب خانی کی گئی۔ اس میں ہزاروں کی تعداد میں جو ہے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی، چاہے بچوں بزرگوں یا نوجوانوں یا اس کے ساتھ ساتھ خواتین کی بڑی کثیر تعداد جو ہے وہ دکھی گئی۔ اور آج رات کو یہاں پہ باقاعدہ طور پر جو ہے شب خانی کی گئی اور اس شب خانی میں درود و اذکار کے ساتھ ساتھ چاہے ہم یہاں پہ دعائی مجلس بھی وہ کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ 605واں عرس مبارک جو ہے وہ بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ منائے جا رہے ہیں، کیونکہ اب آنے والا جو جمعہ ہے یعنی کہ فرائیڈے کے دن جو ہے 5واں ٹائم یہاں پہ جو ہے تبرکات بھی دکھائی جائیں گے، اور جس طرح کی یہاں پہ فیسلٹی، جس طرح کے انتظامات یہاں پہ ہونے چاہیے ضلع انتظامیہ کی طرف سے، اس طرح کے اقدامات یہاں پہ نہیں اٹھائے گئے۔ بالخصوص اگرچہ یہاں پہ میونسپل کونسل کی طرف سے جو ہے تعاون دیا گیا، چاہے ہم یہاں پہ ہیلتھ کے حوالے سے یا فائر سروس کے حوالے سے، کیونکہ اگرچہ دیگر میری ماٹی میرا دیش پروگرام کے حوالے سے میونسپل کمیٹی ترال نے ٹاؤن ہال ترال میں ایک تقریب کا اہتمام کیا، جس میں میونسپل کمیٹی کے چیئرمین منظور احمد خان، ایگزیکٹو افسر غلام احمد ڈار کے علاوہ اسکولی بچوں کے خاص تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر سی آر پی ایف کے اہلکار بھی موجود رہے۔ اس دوران حب الوطنی کے نغمے بھی گائے گئے اور آخر پر ٹاؤن ہال سے سب ڈسٹرکٹ ہسپتال تک ایک ریلی کا انعقاد بھی کیا گیا۔ آج جو یہ پروگرام ہمارا یہاں پہ ہوا میری مٹی میرا دیش، یہ مرکزی حکومت نے ایکچولی آج اس کا ڈیٹ فکس کیا تھا، اور اس سلسلے میں آج ہم نے یہ جو تقریب یہاں پہ تقریب کا انعقاد کیا، اس میں اگر ہم دیکھیں گے اسکولی بچوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لے لیا، ساتھ ہی ساتھ اس میں ہماری میونسپلٹی کے جو ہمارے ایگزیکٹو افسر صاحب ہے اور باقی دیگر عملہ وہ بھی رہا، اور ساتھ ساتھ اس میں ہمارے جو سی آر پی ایف کے کمانڈنگ افسر صاحب تھے یا ایس ایچ او صاحب تھے، انہوں نے بھی شرکت کی۔ تو یہ جو پروگرام ہے، اس پروگرام کو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آل اوور انڈیا بھی سیلیبریٹ کیا گیا، تاکہ جو ہمارے دیش کے وہ سپاہی ہے جنہوں نے اپنی جان کو نشاور کر دیا ہے اپنے وطن کے لیے، ان کو یاد کرنا اور ان کی اس قربانی کو نمن کرنا، پرنام کرنا اور ہمارا فرض بنتا تھا، اور ہم نے آج وہ فرض نبھایا۔ ٹاؤن ہال اشبل میں بھی امرت کلاش یاترا کے حوالے سے تقریب کا اہتمام کیا گیا، اور یہ تقریب میونسپل کمیٹی اشبل کی جانب سے منعقد کی گئی۔ پروگرام کی صدارت بی ڈی سی چیئرپرسن اشبل فردوسہ مقبول نے کی۔ ان کے ہمراہ بی ڈی سی چیئرمین اشبل، بی ڈی او اشبل کے علاوہ مختلف محکمہ جات سے وابستہ ملازمین اور اسکولی بچے اور عام لوگوں نے بھی اس پروگرام میں شرکت کی۔ پروگرام کے آخر پر شہداء کے فیملی ممبران کے ورثاء کو حوصلہ افزائی کی گئی اور ان میں سرٹیفکیٹس اور شال بھی تقسیم کیے گئے۔ اس بھارت میں شہید کی قدر ہے، باقی اس بھارت میں اس بھارت واسیوں کے مٹی کی قدر ہے۔ نریندر بھائی مودی کو میں یہ کریڈٹ دینا چاہتا ہوں، جس نے ہمیں نیند سے جگایا، جس نے ہمیں مٹی کی قدر کرنا سکھایا، جس نے مٹی کی قدر کی، اس نے اپنے ماں کے دودھ کا قرض جو ہے اس کا حق ادا کیا۔ اس لیے آج مجھے لگتا ہے جو آنے والی پیڑھی ہوگی، بھارت میں امن کا بول بالا رہے گا، جموں کشمیر میں امن کا بول بالا رہے گا، اور تمام شہیدی پریوار آج یہ سمجھ چکے ہیں کہ میرا بیٹا مرا نہیں۔ چلے آگے بڑھتے اور آپ کو بتا دیں کہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ کا ماحول لگاتار جاری ہے۔ دونوں اطراف سے گولے داغے جا رہے ہیں، میزائل داغے جا رہے ہیں، اور ابھی تک قریباً 2000 شہری ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں سے 1100 اسرائیلی ہے جبکہ 900 فلسطینی بھی مارے گئے ہیں، اور آپ کو بتا دیں کہ قریباً 5000 کے لوگ زخمی ہیں۔ افراتفری کا ماحول ہے، کئی
लोगों को यरगमाल बनाया गया है, जिनमें ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। वहीं 2000 के करीब घरों को मिस्मार भी किया गया है और 1.5 लाख के करीब लोग बेघर हुए हैं जो खुले आसमान तले जिंदगी गुजार रहे हैं। आपको बता दें कि हमास और इसराइल के बीच जारी कशीदगी आज 5वें रोज में दाखिल हुई है। लगातार आज 5वां रोज है, दोनों अतराफ से जंग जारी है और इसराइल लगातार गजा पर बमबारी जारी रखे हुए है और हमास के जंगजू ने जनूबी इसराइल के शहर हमास के हमलों में 1000 से ज्यादा इसराइली हलाक और 2800 ज्यादा इसराइली जख्मी हुए हैं, जबकि फलस्तीन अस्कलान पर दर्जनों रॉकेट दागे गए और इसराइली फौज के मुताबिक इसराइल की बमबारी में गजा में 900 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें 260 बच्चे और 230 खवातीन भी शामिल है जो इस जंग से मुतासिर हुए हैं। और कहा गया कि 4500 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं और नाकाबंदी जो इलाके हैं, जिन इलाकों पर नाकाबंदी की गई है, इसराइल पर उन इलाकों में हमले जारी है। इस दरमियान इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को सख्त तनबीह करते हुए कहा कि इसराइल हालत जंग में है और उन्होंने कहा कि अगरचे इसराइल ने इस जंग को शुरू नहीं किया लेकिन खत्म इसराइल ही इसको करेगा। वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने हमास को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उन्हें इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी और इसे तवील मुद्दत तक याद रखा जाएगा। वहीं हमास ने भी धमकी दिया और हमास ने कहा कि अगर इसराइल ने बमबारी नहीं रोकी तो जिन इसराइली को यरगमाल बनाया गया है उनको कत्ल किया जा सकता है। इधर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की है। बातचीत के बाद वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमास के साथ चल रही जंग के दरमियान हिंदुस्तान के लोग यहूदी मुल्क के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। पीएम मोदी ने कहा कि फोन करने और मौजूदा हालात पर अपडेट देने के लिए उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के लोग इस मुश्किल वक्त में इसराइल के साथ मजबूती से खड़े हैं और उन्होंने कहा हिंदुस्तान दहशतगर्दी के सभी अशकाल और इजहार के साथ और वाज़ह तौर से इस जंग की मजम्मत करता है। और बड़ी खबर आपको बता दें कि जहां इसराइल और फलस्तीन के दरमियान जंग जारी है, वहीं इस जंग में एक कश्मीरी खातून भी फंसी हुई है। बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि आज 5वां रोज है, इसराइल और फलस्तीन के दरमियान कशीदगी जारी है। वहीं इस बीच एक कश्मीरी खातून भी इस जंग के माहौल में फंसी हुई है। लिब्ना नजीर शबू इसका नाम है और ये फलस्तीन के गजा में इस वक्त फंसी हुई है और वहां से निकलने की कहीं ना कहीं ये राहें ढूंढ रही है और बताया जा रहा है कि इसकी शादी वहां पर हुई है, इसके बच्चे भी हैं, ताहम अब इस जंग के माहौल से बाहर आना चाहती है और ये उसकी तस्वीर और उसका पासपोर्ट आप देख सकते हैं। लिब्ना नजीर शबू इसका नाम है, जो कि गजा में है और ताहम इसने उम्मीद जताई है कि जिस तरीके से हुकूमत काम कर रही है, उन्हें उम्मीद है कि उन्हें इस जंग के माहौल से जल्द निकाला जाएगा। चलिए इसी के साथ अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान ज़ुहूर लोलाबी को दीजिए इजाज़त। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।